अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड यानी 9ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषा कन्नड़ा यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा इस टेक्स्ट बुक्स में पार्ट 1 का जो टेक्स्ट बुक आता है भागा 1 पठ्य पुस्तक, तो उसमें से जो है चैप्टर एक पोएम चैप्टर जो है शबरी कर को है, तो थर्ड पोएम शबरी। तो शबरी पोएम के बारे में आज हमें पढ़ेंगे और इसके बारे में वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे। तो शबरी पहले एक बार मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद हमें जानेंगे। शबरी इसको लिखा है डॉक्टर ना मोगासाले, डा ना मोगासाले। सो पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश ಶ್ರೀರಾಮನು ವನವಾಸದ, तो ये ಲೆಸನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ है ये। ಶ್ರೀರಾಮನು ವನವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಬಂಧನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಅಹಲ್ಯೆಗೆ ಮರಳಿ ರೂಪ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಸಂಕಟ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶಬರಿ ಎಂಬ ವೃದ್ಧೆ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ರಾಮ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾನೆಂಬ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕವನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ। तो यह है पाठ प्रवेश। अब पोएम को पढ़ेंगे हमें। ವಿಂಧ್ಯಾಟವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು ಶಬರಿ, ರಾಮನ ಕನಸೇ ಮರವಾಗಿ, ಮರದ ಲರಳಿದ್ದವು ಹೂಗಳು, ರಾಮನಾಮವೇ ಜೇನಾಗಿ. ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಬಂದನೇ ಬರುವನೇ ಶ್ರೀರಾಮ, ಕಾಣದೆ ರಾಮಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಡುವಳು, ಅಯ್ಯೋ ಬರಡಾಯಿತು ಜನುಮ. ಮರಗಿಡಗಳ ಎಲೆ ಅಲುಗಾಡಲು ಅವು ರಾಮನ ನೋಡಿರಬಹುದೆಂದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಣಿಯುವ ಮಗು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳತೂರುವಳು. ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಳು ಸುಳಿದಾಡಿದ ರಾಕಡೆ ರಾಮನೇ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ನನ್ನೊಡೆಯನೇ ಬಂದೆಯಾ ಎನ್ನುವಳು. ಸೊಂಟದ ನೋವಿದ್ದರೂ ಎದ್ದು ಆ ಬೆಳಗಿನ ಕನಸಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಬರುವುದು ಕಂಡಂತಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದಳು, ರಾಮನ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳ ತೀರಿಸಿ ಕೊಯ್ದಳು ಅನೇಕ ಮರಗಿಡಗಳ ಹಣ್ಣು. ಆರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾ ಮುದ ತಳೆದಳು, ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಿಸಿ ನಿಂತು. ರಾಮ ಬಂದನು ಶಬರಿಯ ಮನೆಗೆ, ಮಗ್ಗು ಅರಳಿ ಹೂಬಿರಿದಂತೆ. ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದನು ಶಬರಿಯ, ತಾನು ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ. ಶಬರಿ ಪೂಸಿದಳು ರಾಮನ ಮೈಮನಸುಗಳನ್ನು. ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಾದವು ಬೆಳಗಿನ ಮಂಜು, ಗರಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದಿಳಿಯುವಂತಹ. ಎತ್ತಿ ತಂದಳು ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿಯ, ಆರಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳ. ಕಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ಸವಿ ಇರುವುದನ್ನೆತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಳು ತಿನ್ನು ನೀನೆನ್ನುತ್ತ. ರಾಮನು ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಕೈತುತ್ತು ನೆನಪಿಸಿ ತಿಂದನು ಮೈಮರೆತು. ಹೇಳಿದ ಶಬರಿಗೆ ತುಂಬಿತು ಹೊಟ್ಟೆ, ತಿನ್ನಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು. ಶಬರಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರಪರೆ ಹರಿದು ಶ್ರೀರಾಮನು ಕಂಡನು ಹರಿಯಾಗಿ. ಒಳಗಣ್ಣಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಸವಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಹೊರಗಣ್ಣಲಿ ಹರಿಯಿತು ನದಿಯಾಗಿ. तो ये हुआ पोएम। अब इसका पूर्वा कथे प्री स्टोरी। ये पोएम शुरू होने से पहले क्या इंसिडेंट हुआ था? तो शबरी एक रोल जो रामायण में आता है, ओके, एक किरदार उन्हें। तो
तो शबरी का ये पोयम जो रामायण का एक सीन का जो है तुमने नज़म विद कंपेयर, पोएट जो है अपने अंदाज से कुदरत के निज़ामों को कंपेयर करते हुए अलग अलग को डिस्क्राइब करते हुए बता रही सो शबरी की स्टोरी के साथ। तो पूर्वा कहते शबरी का प्री स्टोरी क्या था, ये पोयम होने से पहले का एक प्री स्टोरी क्या बोल रही पोएट वो देखना हमें। तो प्री स्टोरी पूर्व कತೆ, ಶಬರಿಯು ಮತಂಗ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ವೃದ್ಧೆ. ಈಕೆ ಮತಂಗ ಮುನಿಗಳ ಕಾಲಾನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರಿಸಿ ಕಾದಿದ್ದಳು. ಸೀತಾಪರಣದ ನಂತರ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮನು ತಪಸ್ವಿಯೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡಗೂಡಿ ಮತಂಗಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಬರಿಯು ತನ್ನ ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಫಲಿಸಿತೆಂದು ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಉಪಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆತನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಶಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಶಬರಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನಾನಂತರ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲವೆಂದು ದಿವ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ. ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ, ಆದರ, ಆತಿಥ್ಯ, ಭಕ್ತಿ, ವಿನಯ, ಮುಗ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಶಬರಿ संकेतವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. तो ये पोएम से पहले प्री स्टोरी बोल रही सो इस कहानी ये क्या हुई थी करके शबरी के बारे में बोल रही सो पोएट डॉक्टर ना मोगसाले। तो पूर्व कथे जान लेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद पोएम की तरफ जाएंगे। तो प्री स्टोरी में यानी ये पोएम से पहले आप क्या बोलना चाह रही पोएट का, तो हम ना शबरी कर को अब लेसन में बोले एक किरदार उन्होंने रामायण में आती सो एक ओल्ड लेडी उन्होंने। तो शबरी जो है मतंगा मुनिगढ़, मतंगा नाम के एक सेंट रहती, ओके, एक ऋषि मुनिवर उन्होंने। तो वो मुनिवर के आश्रम में उन्होंने रहने की जगह जहाँ पे साधु सन्यासी जो लोग रहती और वहाँ पे मेडिटेशन करती, वहाँ पे इल्म सीखती, तो उस जगह को आश्रम बोलती। तो मतंगा मुनि नाम के एक ऋषि मुनिवर, उनके आश्रम में रहने वाली एक ओर्व वृद्ध, एक ओल्ड लेडी, ओर्वा एक वृद्धे ओल्ड लेडी, एक बुजुर्ग औरत उन्हें उम्र दराज की एक औरत शबरी कौन का, तो तुमने आइडिया मिल गया नहीं। शबरी एक उम्र दराज की ओल्ड लेडी, एक उम्र दराज की एक औरत, उम्र दराज वाले एक औरत जो कि वो मतंगा मुनि नाम के एक ऋषि मुनिवर ही उनके आश्रम में रहते थे। मतंगा मुनि नाम के जो कि ऋषि मुनिवर, तो उनके आश्रम में वो रहा करती थी। समझ में है ना। शबरी कौन का, तो उन्हें एक ओल्ड लेडी, एक उम्र दराज की एक बई को, तो उन्हें मतंगा मुनि नाम के एक आश्रम था, तो उस आश्रम में रहने वाली थी। तो उसका एक पिक्चर दिखाता हूँ, देखो शबरी है उम्र दराज वाले एक औरत, ओके। ये पोएम को जाने से शबरी कौन का, तो एक उम्र दराज वाले औरत, रामायण में आने वाले किरदार इनो रामायण की स्टोरी में आती सो। तो उसमें एक उम्र दराज वाले औरत इनो मतंगा मुनि कर को एक ऋषि मुनिवर रहती, उनके आश्रम में रहती हैं सुनो। ई के मतंगा मुनिगढ़ा इन्हों जो ही शबरी जो है मतंगा मुनि, जो मतंगा ऋषि मुनिवर ही उनके कालानंतर, यानी उन्होंने दुनिया से रुखसत होने के बाद जो इन्हों ऋषि मुनिवर इनके आश्रम में रहते हैं ना, वो ऋषि जो है इंतकाल कर गए। उसके बाद उन्होंने मरने के बाद इन्हों शबरी जो है श्री रामन दर्शन का, मैं श्री राम को देखती हूँ, क्यों तो मतंगा मुनि बोले रहती, तुझे श्री राम आती, तुझे मोक्ष मिलता कर को बोले रहती। तो उन्होंने जो है शबरी, मैं श्री राम का जो है दर्शन पाती हूँ, उनको मैं देखती हूँ कर को कातरिसी बहुत ज़्यादा जपले को रहती है। उन्हें कातरिसी कादिद्दड़ू, बहुत ही एक्साइटमेंट से, मैं आज नहीं तो सब आती छ, उनका दर्शन मिलता, उन्होंने मुझे दिखती छ, उन्होंने मुझे भेंट मुझे उन्होंने मीट करती छ कर को, ऐसा जपले को रहती है सो। तो उसी टाइम पे सीतापहरण था, सीतापहरण का, तो सीता को जो है हाईजैक कर लेता रावण जो है रामायण की स्टोरी में तुमने मालूम ऑलरेडी, रावण जो है सीता का अपहरण कर लेता, अपहरण का तो किडनैप कर लेता, हाईजैक कर लेता, उसको बोलते अपहरणा, यानी सीता को जो है अपहरण कर लेता, किडनैप कर लेता कौन, रावण, उन्हें एक डेमन, ओके। नंतर दुखितनागी बाद में जो है इससे बहुत ही गमगीन होको सागुತ್ತಿದ್ದ रामनु, इससे गमगीन होकर राम जो है तपस्वी अब्बर सलहंती, एक तपस्वी, एक साधु के जो है राय के मुताबिक
तन्ना तम्मनादा, अपने छोटे भाई लक्ष्मण नोड़गूड़ी, लक्ष्मणा के साथ जो है अपना छोटा भाई राम का जो छोटा भाई लक्ष्मण रहता है उनके साथ मतंगा आश्रम को आता है। मतंगा आश्रम अगर को रहता है, ओके, उस यानी मतंगा मुनि बोले यानी में ऑलरेडी तो ऋषि मुनि और मतंगा मुनि अगर को, तो उनके आश्रम के पास राम आता है। तो उसी टाइम में जब इन्हों जपते रहती तो उसी टाइम में जो सीता का अपहरण हो जाता तो गमगीन होकर जो है राम जो है भटकता रहता इधर उधर। तो तब एक तपस्वी के एक राय के हिसाब से अपने भाई जो रहता छोटा भाई राम का, लक्ष्मण छोटा भाई रहता ना, उसके साथ मिलकर उन्होंने आते आते रास्ते में मतंगा आश्रम को, इस आश्रम को जहाँ पे शबरी ठहरी रहती है उस आश्रम के पास आती। तो अल्ली वहाँ पे शबरी यू तन्ना, वहाँ पे शबरी जो है अपना बहुदिना गड़ा, अपना जो है बहुत दिन से जो है इंतज़ार कायु के, अपना बहुत दिन से जो इंतज़ार कर रही थी, कोनेगु फली से आखिरी में वो फल आया, उसका नतीजा मिला। मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी राम को मिलने का, वो मौका आया ना कर को खुशी पट्टू, बहुत ही खुशी से बहुत खुश होकर संभ्रमदिंदा, बहुत ही खुशी के साथ आतनन्नु ऊपर जो राम को जो है ट्रीट करते हैं, यानी फल्ला को देना, अलग अलग वहाँ के पेड़ के जो है फ्रूट्स को सब ले लेगा को, फूल सब ले लेगा को राम को ट्रीट करती है। ओके, यानी राम को साथ उन्होंने इस तरह से ट्रीट करती हैं शबरी। आतनु तन्ना, वो भी राम भी जो है अपना ताइय प्रेमವನ್ನು, अपनी माँ के जैसा प्यार को शबरिಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, शबरी में देखता है। यानी अपनी माँ के जैसा प्यार जो है शबरी में राम को जो है दिखता है। और शबरी भी जो है श्री राम के जो है दर्शनानंतरा, यानी श्री राम का जो है उनका दर्शन होने के बाद, उनको दिखने के बाद, उनसे मुलाकात करने के बाद, तन्ना बदुकिनली, मेरी ज़िंदगी में अब साधिसुवंथದ್ದೇನಿಲ್ಲವೆಂದು, मैं क्या भी अभी करने का नहीं है, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ राम को देखना था, इसी का राम नाम जप करते हुए मैं इंतज़ार कर रही थी। अब राम मुझे मिल गए, मैं देख ली, अब मेरी ज़िंदगी में और कुछ दूसरा मैं पाने का नहीं है, मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी मैं अचीव करने का नहीं है करको दिव्य सायुज्यವನ್ನು, यानी मोक्ष को पाती उन्हें। ओके, तो मोक्ष पाने के बाद निष्कल्मशा प्रीति, यहाँ पे एक दूसरे का जो है कोई भी एक गलत प्यार नहीं है, एक अच्छा सा प्यार, एक आदर और एक आतिथ्य भक्ति विनय मुग्धತೆಗಳಿಗೆ शबरी संकेतलागिದ್ದಾಳೆ। शबरी यहाँ पे पोएट इस तरह से बता रही कि शबरी का एक बिना मतलब वाला प्यार, निष्कल्मशा प्रीति, आदर, यानी उसका आदर, उसका रेस्पेक्ट, उसका आतिथ्य, उसका ट्रीट करना, भक्ति, उसका डिवोशन, ओके, विनय, उसका ओबीडियंस, मुग्धते यानी उसकी जो है इनोसेंस, उसके जो है भोलापन, ये तमाम चीज़ों की निशानियत के तौर पे शबरी यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो वो सीन को शबरी के जो मीट करते हैं राम, इन्हें इंतज़ार में रहते, वो पोएट अपने अंदाज में जो है अलग अलग कुदरत के निज़ामों को, कुदरत के चीज़ों को लेकर डिस्क्राइब करते हुए, कंपेयर करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से समझे सो वो। तो ये स्टोरी तुम्हें मालूम हो गया, राम आको मिलती सो, तो वो सिचुएशन को या नज़म के तौर पर पोएट डॉक्टर मोगसाले बोल कोई बस। ओके, तो अब हमें पोएम की तरफ जाएंगे। ये प्री स्टोरी मालूम होगा, तो ये तुमने कॉन्सेप्ट मालूम होगा। शबरी का तो कौन, मतंगा आश्रम में रहने वाली एक उम्र दराज औरत लेडी, ओके, शबरी जो रामायण में आती है, रामायण की कहानी में आने वाली एक किरदार होने को। तो शबरी का अब पाठ प्रवेश दिखेंगे। लेसन इंट्रोडक्शन क्या है, लेसन इंट्रोडक्शन में पाठ प्रवेश, श्री रामनु वनवासदा, श्री राम जो है जंगल का जो वास करते रहता है, यानी वनवास अगर तो श्री राम जो है जंगल में आको वास कर लेगा, जंगल में उन्हें रहना सहना खाना पीना सब जंगल में करते रहता है, तो उसको बोलते हैं वनवास। जो श्री राम जो है वनवास करते रहती, तो उस मौके में सिचुएशन में, उस दौरान संदर्भದಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, जब जंगल में इधर उधर श्री राम भटक रहे थे, तो कबंदनेंब राक्षसनिगे, कबंद नाम का एक डेमोन, एक राक्षस को, एक रक्कस को, कबंद नाम के एक रक्कस को मोक्ष नीडुत्ताने, उसको मोक्ष देती, कबंद नाम के एक डेमोन को, राक्षस को मोक्ष देती। और कल्लागिद्दा अहल्येगे, जो पत्थर बन चुकी थी अहल्य, उसको मरली रूपन, उसको वापस उसका रूप दिलाती। अहल्य जो पत्थर बन जा करती वापस उसका रूप देती।
तो ऋषि मुनिगला और ऋषियों का जो सेंट साधुओं का जो है प्रॉब्लम्स को न सॉल्व करते संकट परिहरिसुत्ताने, यानी वनवास में रहने टाइम में ये सब अच्छे काम श्री राम कर ले हैं सो वनवास में, लेकिन दूसरों को भी इतने अच्छे काम कर रहे। अंते उसी तरह ये सब कर ले कार्य ना, उसी तरह शबरी अंबा रुद्धे, शबरी नाम की एक लेडी, एक बुजुर्ग औरत जो है, इंदल्ला नाले आज नहीं तो सबा राम तन्ना मಳಿಗೆ, राम जो है मेरे पास बंदा ने बाती कर को आसेಯಲ್ಲಿ आस में एक आस में उन्हें कायुत्ता कुरितिरुत्ताಳೆ, उन्हें एक आस में आज नहीं तो सवार श्री राम आपको मुझे मिलती करके उस आस में उन्हें बैठी रहती है। सो प्रामाणिकवाद तो सिंसियरिटी तौर पर इसमें मनस्सु ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, सिंसियरिटी तौर पर इस तरह का मन रहा तो, इस तरह से अच्छा हमारा मन रहा तो देवरू कूड़ा भगवान भी सदा जो है ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, हमारे पास भगवान भी जो है आताच ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು इस तरह की जो है बिलीवनेस को ही कवाना ये पोएम जो है हमना डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, तो ये पोएम हमें इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है करके बोल रही। तो शबरी पोएम में इंट्रोडक्शन क्या है तो श्री राम जब वनवास में रहती, जंगल के वास में रहती, भरता को पट्टाभिषेक मिल जाता तो राम जो है वनवास पे निकलती। तो वनवास करने के दौरान जो है कबंदा नाम के राक्षस के साथ फाइट करके उसको मोक्ष देती। ओके, और साथ में पत्थर बन चुकी अहल्य को वापस उसका रूप दिलाती। उसी तरह से शबरी नाम की भी एक ओल्ड लेडी, राम आज नहीं तो सब आती, मुझे मुलाकात मिलती है उनसे, उसके बाद मुझे मोक्ष मिलता है, यानी इस दुनिया से मैं रुखसत हो सकती हूँ, मेरे आस वो 21 से करके रख ले उन्हें जपते रहती है। तो यहाँ पे उसकी एक सिंसियरिटी तौर का उसका मन जो भगवान राम जो है श्री राम आज नहीं तो सब आतीश मेरे पास करने की एक बिलीवनेस को ये पोएम में बता रही हूँ, वो सीन को बता रही हूँ बस। तो शबरी पोएम, शबरी का तो कौन तुमना मालूम हो गया। अब शबरी का जो है प्री स्टोरी, इस पोएम से पहले क्या हुआ वो भी मालूम हुआ, अब इंट्रोडक्शन भी मालूम हुआ। अब पोएम में क्या है वो देखेंगे, पोएम में पोएट क्या बोल रही हैं वो पॉइंट्स सब पर रोशनी डालेंगे। अब विंध्या अटवियल्ली इद्दಳು, देखो वो श्री राम जो है शबरी से मिलने का दौरान का जो है किस्सा यहाँ पे इस पोएम में है। सो बस, तो विंध्या अटवियल्ली, विंध्या, विंध्या एक पहाड़, अटवी का जंगल, विंध्या अटवियल्ली, अडवी का तो जंगल, सॉरी, विंध्या के जंगलों में अटवियल्ली इद्दಳು शबरी, शबरी थी, विंध्या अटवियल्ली, विंध्या के जंगलों में पहाड़ों में जो है वहाँ पे शबरी थी। तो विंध्या के जंगल और पहाड़ी इलाके सब दिखाता हूँ, देखो कुछ इस तरह से रहती है। विंध्या के जंगल, विंध्या के जंगल में थी शबरी, विंध्या अटवियल्ली इद्दಳು, इस जंगल में मतंग मुनि का जो आश्रम था उस आश्रम में शबरी थी, शबरी थी इस विंध्या के जंगलों में, जो कि वहाँ पे मतंगा मुनि आश्रम जो है ज़्यादातर ऋषि मुनिवर जो है अपने आश्रम में जंगलों में रखते सो। तो विंध्या अटवियल्ली, विंध्या के जो है जंगलों में थी शबरी। रामना कनसे, राम को मिलने का ख्वाब उसको एक पेड़ जैसा बन चुका था, मजबूत बन चुका था। रामना कनसे मनवागी, राम को मैं मिलती हूँ आज नहीं तो सबा, राम मुझे अपना दर्शन देती, हमारा मुलाकात होता करने का एक घट्ट पेड़ जैसा हो चुका था। मरदल अरಳಿದ್ದವು, और उस पेड़ पे जिस तरह फूल खिलते हैं, हूಗಳು पेड़ पे जिस तरह फूल खिलते हैं उस तरह से राम नाम वे जेनागी, राम का नाम इन्हें जप करती थी शहद की तरह, हनी की तरह। राम नाम वे जपवागी, हनी शहद, हूಗಳು तो फ्लावर, यानी पोएट यहाँ पे राम का जो इंतज़ार में जो बैठी है शबरी, ओके, उसको नेचर के साथ डिस्क्राइब कर को अलग अलग के साथ जो है कंपेयर करते हुए खूबसूरती को बयान करी। सो पोएट ज़्यादातर ऐसा नेचर की ब्यूटी को लेती किसी भी, ओके, और सोशल में इनइक्वालिटीज़ को लेती, ओके, ये तमाम चीज़ें हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को लेती। तो उसी तरह यहाँ पोएट भी शबरी की स्टोरी में नेचर को बखूबी अच्छे तरीके से लेको कंपेयर करके बता रही। यानी विंध्या के जंगलों में थी शबरी मतंगा मुनि के आश्रम में, और राम को मिलने का ख्वाब ही एक पेड़ तरह मजबूत हो चुका था। उसका ख्वाब था कि मैं राम से मुलाकात करेंगी, तो पेड़ की तरह मजबूत हो चुका था। और जिस तरह उस पेड़ पर फूल खिलती ना, उस तरह से इसके मुंह से हमेशा राम नाम का जप आता था, एक शहद की तरह, राम राम जी राम, राम जी राम, जय राम, राम जय राम करके इस तरह से श्री राम जय, इस तरह से वो अपने जो है बोलते उसका नाम को जो है जपते हुए शहद की तरह जो है मीठे से वो जपती रही।
नेक्स्ट तो समझ में आ गया ना। विंध्या के पहाड़ों पर, विंध्या के जंगलों में शबरी रहा करती थी और राम से मिलने का जो ख्वाब जो एक पेड़ की तरह मजबूत बन चुका था। जिस तरह पेड़ के ऊपर, पेड़ में, पौधों में फूल खिलते हैं, उस तरह से इसके जो है श्री राम का जो है जप जो है खिलता रहा, एक शहद की तरह बनता रहा। अगर नेक्स्ट, सुत्तमुत्तलनु नोडुत्तिद्दळु, इधर उधर शबरी देखती रही। हाँ, मतंगा मुनि आश्रम में थी, विंध्या अटवी के जंगलों में, और इधर उधर कभी भी इधर उधर देखती रहती, श्री राम आ जाएंगे कर को। सुत्तमुत्तलु नोडुत्तिद्दळु, इधर उधर देखती रहती हमेशा। बंदने आया की, बरुवने आ गया की, बंदने बरुवने आ गया की, आ रहा है की, इस तरह से श्री राम जो है आ गया की, आ गए की, काणदे राಮಗೆ अयो राम को नहीं देखी ना कर को, निಟ್ಟुसिरुडु कर को, ऐसा सांस छोड़ती है, इसको बोलती निಟ್ಟुसिरुडु, अयो राम नहीं आए ना अगर को, इस तरह से अयो बरड़ाई तू जनुमा, मेरा ये ज़िंदगी ये बंजर जैसा, अगर मैं राम से नहीं मुलाकात करी तो एक मेरे से मोक्ष नहीं मिलता, मुझे ये ज़िंदगी एक बंजर की तरह हो जाता है। अयो बरड़ाई तू जनुमा। ओके, तो सेकंड पैराग्राफ में शबरी अब इंतज़ार कर रहे हैं श्री राम जी का, ओके, आने का इंतज़ार में है, इधर उधर देख रही है, कभी अयो राम आया है कि आ गया कि, इस तरह से सोच में डूबी हुई है। तब जब नहीं देखती तो राम को, अयो मैं नहीं देखी ना, और बेजार कर ले रहे कि अयो मेरा ये ज़िंदगी जो है बंजर जैसा हो गया राम बिना राम के। नेक्स्ट, मर गिड़गळ एले अलुगाडलु, जैसे ही पेड़ पौधों के पत्ते हलते, मर गिड़गळ एले अलुगाडलु, रामನ ನೋಡಿರಬಹುದೆಂದು, राम को देखे रहेगा, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಣಿಯುವ ಮಗು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳ ತೂರುವಳು, ಮರಗಿಡಗಳ ಎಲೆ ಅಲುಗಾಡಲು। जब यहाँ पे देखती है तो देखो पेड़ पे फूल खिले जैसा उसका शहद की तरह राम नाम जप रही थी, और साथ में इन पेड़ों से, हाँ, शहद को देखे ना, ये शहद है, जेनू का तो शहद, वो का तो फ्लावर। जब भी जो है पेड़ पौधों के जब पत्ते हलते, ओके, पत्ते हलते तो उन्हें सुस्ती की, रामन नोडिरबहुदु, क्या पौधों क्या पेड़ों तुमने क्यों खुशी से लहरा रहे हो, क्या तुमने राम को देखा क्या, ए पत्तों तुम, ए पेड़ पौधों के पत्तों तुम खुशी से यूँ लहरा रहे हो, खुशी हल रहे हो, क्या तुमने राम को देखा है। मरा गिड़गळ एले अलुगाडलु, पेड़ पौधों के पत्ते हलते देखते उन्हें बोलती कि क्या तुमने राम को देखा क्या। कामनु बिल्लनु नोड़ी कुಣಿಯುವ मगु मनस्सिನ ಒಳತೂರುವಳು, जैसा ही रेनबो को देखो जिस तरह से बच्चा खुशी से झूम उठता है, नाच उठता है, उसी तरह इन्हें भी झूम उठती थी खुशी से। ये हो जाती कि कहीं राम ना आ गया हो, कहीं सचमुच के श्री राम यहाँ मेरे पास आ गए हो। कामन बिल्लू को तो रेनबो जो बारिश आने के बाद आता है, उस तरह से एक बच्चा देखकर जिस तरह से खुशी से झूम उठता है, उससे बच्चे की तरह शबरी खुशी से झूम उठती थी। ओके, तो सबसे पहले जब पेड़ और पौधों का जब पत्ता हलता, वो श्री राम को देखेगा कि करके उनसे बोलती है। उसके बाद पूछती है क्या तुमने राम को देखा क्या करके। और जो रेनबो जिस तरह रेनबोस को बारिश आकर रुकने के बाद जो रेनबो साथ को बच्चे देख को खुश हो जाती ना, कैसा कलरफुल आया अगर को, ऐसा बच्चों की तरह ये खुशी से झूम उठती थी। उसके बाद मृगा पक्षिಗಳು जानवर और परिंदे सुಳಿದಾಡಿದರ ಆ ಕಡೆ, इधर उधर टहलते रहे तो सुಳಿದಾಡಿದರ ಆ ಕಡೆ रामने ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು, सचमुच में राम आ गया होगा। मृगा पक्षिಗಳು सुಳಿದಾಡಿದರ ಆ ಕಡೆ, यानी मृगा पक्षिಗಳು, परिंदे और जानवर, परिंदे मृगा का तो जानवर, पक्षी का तो परिंदे। मृगा पक्षिಗಳು जानवर और परिंदे इधर उधर टहलते रहे तो उनसे पूछती समझती कि रामने बंदिरಬಹುದೆಂದು, शायद राम ही आ गया होगा, इसलिए इधर जानवर और परिंदे चहल पहल कर रहे हैं, इधर उधर आ रही जा रही, शायद मेरा राम आया होगा मेरे से मुलाकात करने के लिए। नन्नोಡೆಯನೇ मेरे यजमान आ गया क्या, बंदेया ಎನ್ನುವಳು करको बोलती है। ಸೊಂಟದ ನೋವು ಇದ್ದರೂ, कमर का दर्द रहा तो भी उठ को खड़ी हो जाती, ಎದ್ದು, ಸೊಂಟದ ನೋವಿದ್ದರೂ ಎದ್ದು, कमर का दर्द है तो भी उठकर खड़ी हो जाती। इस तरह से मृग पक्षिಗಳು ಸುಳಿದಾಡಿದರ ಆ ಕಡೆ ರಾಮನೇ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ನನ್ನೊಡೆಯನೇ ಬಂದೆಯಾ ಎನ್ನುವಳು।
ಸೊಂಟದ ನೋವಿದ್ದರೂ ಎದ್ದು, यानी शबरी को कमर में दर्द रहता, फिर भी उन्हें उठ को खड़े हो जाती। कब? जब परिंदे और जानवर चहल पहल कर रही तो समझती कि शायद मेरा राम आया होगा, मेरा यजमान राम, मेरा बॉस नन्ना वड़ैया, मेरे इसका जो है मालिक, मेरा मालिक जो है श्री राम भगवान जो आए होंगे, पधारे होंगे, मेरे से मुलाकात करने वास्ते आए होंगे कर को उन्हें उठ खड़ी हो जाती। जैसे ही चरिंदे परिंदों का चहल पहल होता, परिंदे और जानवरों का चहल पहल इधर उधर आना जाना होता, तो उन्हें समझ लेती कि राम ही आ गया है कर को और खड़े हो जाती। उतने तकलीफ में भी उन्हें खड़े हो जाती। ಆ ಬೆಳಗಿನ ಕನಸಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಬರುವುದು ಕಂಡಂತಾಯಿತು. तक्षण ಎದ್ದಳು ರಾಮನ ಜಪಿಸುತ್ತಾ. ಆ ಬೆಳಗಿನ ಕನಸಲಿ, उस दिन सुबह का वक्त था, सुबह के वक्त में उसको ख्वाब पड़ रहा था। उस ख्वाब में अवली उसे ऐसा लगा कि श्री राम जो है लक्ष्मण सहित, श्री राम जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। बरुवुदु कंडंताई, तो श्री राम जो है लक्ष्मण के साथ जो है शबरी से मुलाकात करने के वास्ते आ रहे हैं। इस तरह से उसको ख्वाब पड़ता है। तक्षण यद्दड़ू, इमीडिएटली उन्हें झट से वहाँ से उठ गई, सो रही थी, ख्वाब पड़ते झट से उठ गई। रामन जपिसुता, जय श्री राम इस तरह से बोलते हुए, राम का मंत्र जपते हुए वो खड़े हो गई। यानी आ बेಳಗಿನ कनसली, उस सुबह के ख्वाब में उसे श्री राम जो है लक्ष्मण के साथ आए जैसा हुआ। बरुವುದು खंडंताಯಿತು, और तक्षण और फौरन वो ख्वाब से उठ गई, सो रही थी, वहाँ से उठकर जो है राम नाम को जपते हुए वो उठ खड़ी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, नित्य विधिಗಳ ತೀರಿಸಿ, हर दिन की तरह सुबह में उन्हें जल्दी उठ गई, क्योंकि उसको सुबह सुबह का ड्रीम पड़ा था, ख्वाब की उसको मुलाकात करने, उससे मिलने के वास्ते राम खुद आ गए हैं, वो भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। तो फ़ौरन वो नींद से जाग गई, उठ गई। अब वो उठने के बाद क्या कि नित्य विधिಗಳ ತೀರಿಸಿ, अपना डेली जो रूटीन रहता है, अब हर एक रूटीन क्या रहता है, सुबह में उठती, ब्रश करती, फेस वॉश करती वगैरह वगैरह डैश डैश, नहीं, तो इस तरह से उसका सुबह का जो रूटीन जो था वो करी। उन्हें कर को ಕೊಯ್ದಳು, काट लाई अनेक ಮರಗಿಡಗಳ, बहुत सारे पेड़ पौधों का हಣ್ಣು आरिसी ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾ, फलों को काट लेकर आती है और उनमें से चुन को देना कर को। मुद तಳೆದಳು ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಿಸಿ ನಿಂತು, और प्यार आँखों में बरली, मुद तಳೆದಳು, प्यार अपने चेहरे पर प्यार को बरसाई और आँखों से जो है उसको पका हुआ फल बना ली। यानी मतलब इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, तो उन्हें श्री राम जैसा ही ये ख्वाब पड़ा कि राम उससे मुलाकात करने गए, फ़ौरन उठ गए और अपना डेली रूटीन का काम, जिस तरह हमें डेली सुबह में उठने के बाद करते हैं ना, वो काम कर ले को उन्हें जाको पेड़ पौधों से, अलग अलग पेड़ पौधों से फलों को काट कर लेकर आती है। उन्हें फ्रूट्स को तोड़ने को ले लेकर आते हैं, और उसको जो है उसका प्यार ऐसा रहता है कि उस प्यार से जो फल जो है पक चुके हों, इस तरह से प्यार दिल में और चेहरे पे प्यार भरा हुआ है, और उसमें से तरह तरह के फल उन्हें चुन रही है ताकि वो राम को दें, राम को उनको खिला सके, ट्रीट दे सके उससे। तो ये हुआ। नेक्स्ट, राम बंदनु शबरिया मनेगे, तो राम अब आ गए, सच में उन्हें सोच रही थी तो ख्वाब पड़ा, तो उसी तरह से राम आ गए शबरी के पास। राम अनुबंधनु शबरिया मनेगे, राम जो है शबरी के घर पर आ गए। रामनुबंधनु शबरिया मनेगे, राम जो है शबरी के घर पर आ गए, यानी उनके आश्रम पर आ गए। जो मतंग मुनि के जो आश्रम पे थे शबरी, तो वहाँ पर राम आ गए। रामनुबंधनु शबरिया मनेगे, शबरी के घर के पास राम आ गए। मग्गु अरಳಿ, कली खिली, हू बिरिदंते, कली खिली और फूल जिस तरह कली खिल को जिस तरह से फूल बनता है, ओके, राम जो शबरी के घर के पास आना ऐसा हुआ कि जिस तरह कली खिल को फूल बनता उस तरह से अप्पे हिड़िदनु शबरिया, और शबरी को जो है गले से लगा लिया। जिस तरह कली खिल को फूल बनता उस तरह से शबरी जो है, शबरी को श्री राम ने
ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದನು, गले से लगाया। तानु कौशल्य बड़ियल्ली रोते, जैसा कि मैं अपनी माँ कौशल्य के पास हूँ, जिस तरह मैं कौशल्य के साथ खड़ा हूँ, कौशल्य मेरी माँ के साथ हूँ, उस तरह से शबरी को उन्होंने, श्री राम ने जो है शबरी को ऐसा गले से लगाया, अप्पी हिडिदंते, गले से लगाया, जिस तरह कि मैं अपनी माँ कौशल्य के पास हूँ उस तरह से। शबरी पूसिदಳು रामन महिमना, शबरी जो है राम के शबरी पूसिदಳು रामन महिमना, शबरी जो है रामन महिमना, शबरी जो है राम के जो है मन, बदन और मन को छीकर, ऐसा ओके, ऐसा ये करती नहीं, रामा रामा अगर कोई सच्ची को हमें, अब बड़े को तो भी अब बच्चों को किस तरह से सहलाती नहीं, उस तरह से शबरी जो है, जब वो शबरी को राम गले लगा लेती, जिस तरह फूल कली जो है फूल खिले जैसा, तब वो शबरी भी क्या करते हैं, उनको जो है ऐसा सहलाते, राम को ऐसा छीकर जो है सहलाते। ऐसा सहलाना ऐसा रहता है कि राम के मन और तन दोनों को सहला रही हो ऐसा लगता है। मई मनसुಗಳನ್ನು प्रीतिಯಿಂದ कईಯಿಂದ, प्रीति अपने प्यार भरे हाथों से श्री राम के जो है मन, तन और मन को जो है सहलाती है, यानी बॉडी और सोल दोनों को भी सहलाते। ಕಣ್ಣುಗಳಾದವು ಬೆಳಗಿನ ಮಂಜು गरिके ಮೇಲಿಂದಿಳಿವಂತಹ, कಣ್ಣुಗಳಾದವು, और आँखें उसके ऐसे बन जाती हैं जैसा ओस की तरह, जो कि ओस, ऐसी ओस जो चारे से ऊपर, चारे के ऊपर से नीचे उतर रहे हो, चारे के ऊपर ओस जमी हो तो ओस जो है चारे के ऊपर से नीचे जिस तरह से उतरते ना, उस तरह से उतर रहे हो। यानी नेचर को भी बीच बीच में आथर शबरी और राम के जो मुलाकात होने के सीन को जो है, उन्हें राम का जो दर्शन पाने को रहती है, और जो राम के साथ जो है श्री राम का जो है दर्शन होता है शबरी के साथ, तो दोनों मौक़ों को नेचर के साथ कंपेयर करके डिस्क्राइब करके बता रहे सो पोएट यहाँ पे। तो शबरी जो है सहलाते श्री राम को, जब उन्होंने उसे गले लगाती जिस प्यार के, प्यार भरे हाथों से, ओके, और उसके आँखों को जो है, हाँ, और उसके आँखों जो है सुबह के ओस की तरह बन जाती हैं, वो भी ओस, ऐसा ओस जो है चारे के ऊपर से नीचे उतर रहा हो, उस तरह से उसके आँखों से पानी, खुशी के आंसू भी आ रही सो करके, उसका मतलब एक खुशी के आंसू, जिस तरह ओस चारे के ऊपर का ओस नीचे उतर रहा ना, उस तरह से उसके खुशी के आंसू आँखों से आ रहे हों। यत्ती तंदड़ु हण्ಣಿನ बुट्टिया, अब यता होने के बाद क्या करिए, अब उठा कर लाई फलों की बैग को, फलों की एक बुट्टी को, एक बास्केट को, फलों की एक बास्केट को उठा को लाचे कौन शबरी, आरिसे कोडली के हण्णुಗಳ, चुनकर देन में फलों को, कच्ची नोड़ी, और इसमें से कौन सा तो खट्टा अच्छा नहीं सो रखा तो मेरा श्री राम वो खा लेती ना कर को, सबसे पहले वो कतर को इन्हें खाती, चक्कर को बाद में उसको सवी इरुವುದನ್ನೆತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಳು ತಿನ್ನು ನೀನೆನ್ನುತ್ತಾ, उसमें अच्छे ही सो कतर दी उन्हें फल लाई। इसमें ये पैराग्राफ में क्या बोल रही, यत्ती तंदड़ु हण्णु बुट्टिया, फलों वाला जो है बुट्टी को उठा कर लाई। आरिसी कोडली के हण्णुಗಳ कच्ची नोड़ी, चुनकर उसमें से सही फल को देने के वास्ते चुनकर उसमें कतरती उन्हें, पहले अच्छा है कि खट्टा है कि कर को, बाद में सवी इरुವುದನ್ನೆತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಳು ತಿನ್ನು ನೀನೆನ್ನುತ್ತಾ, उसमें अच्छे इंसो मीठे इंसो उठा को देती, ने कतर को चेक करती, खट्टे ऐसे वैसे रहते वो नहीं देती थी, जो मीठे रहती ले ये खा कर को श्री राम को देती। यानी इसका इनोसेंस कितना है कि कहीं मैं राम को अच्छा नहीं सो, खट्टा नहीं सो, कहीं फल दे डालती उनकी क्या की कर को, देने से पहले उसको कतर को चेक करके उसको देती थी। उसके बाद रामनु कौशल्य कई तुत्तु, रामनु कौशल्य कई तुत्तु, राम जो है कौशल्य उसकी माँ का जो है हाथ का निवाला, नेनपिसी तिंदनु मई मरेतु, उसको खाया, उन फलों को इस तरह से श्री राम ने खाया उन फलों को जैसा कि मेरी माँ कौशल्य का हाथ का निवाला खा रहा हूँ। तो उन्हें मेरी माँ का ही जो है हाथ से, जो कौशल्य के हाथ से जो है मैं फलों को हाथ का निवाला खा रहा हूँ, उस तरह से वो शबरी जो भी उस फल को चक्कर को देती, कतर को, जो मीठा है झूठा है लेकिन उसमें प्यार भरा है, उसमें डिवोशन है, उसमें इनोसेंसनेस है, प्यूरिटी है, एक सिंसियरिटी है, ये पसंद आ रहा राम को। तो उसके वास्ते उन्हें जो है राम को जो है
राम भी अपनी माँ को याद करते हुए माँ के हाथ से मैं खा रहा हूँ जंगल में भी करके उस तरह से वो खाता है। ಹೇಳಿದ ಶಬರಿಗೆ फिर बोलता है खाने के बाद, ತುಂಬಿತು ಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಲೇ ಇಲ್ಲ इंथद्दू, मेरा पेट ही भर गया कि मैं कभी भी ऐसा फल ही नहीं खाया हूँ। कितने अच्छे फल तुमने खिलाए भाई, इतने अच्छे, इतने मीठे, इतने रसीले फल मैंने कभी खाया ही नहीं, इतने प्यारे फल तूने मुझे खिलाए करको श्री राम कहते हैं, शबरी से कहते हैं। बाद में शबरी या कण्णिन ಹೊರ परे हरिदू, शबरी के आँख का बाहर का पर्दा फटकर, मतलब यानी उसका आँखों का पर्दे से जो है आंसू निकले घर को, खुशी के आंसू, एक मोक्ष पाने करने की एक खुशी की लहर उसके आंखों में आए। श्री रामनु कंडनु हरियागी, और उसको श्री राम का दर्शन हुआ, जो उनके अवतार में जो श्री राम आए थे उनका जो है हरि के अवतार में उसने देखा। और ಒಳಗಣ್ಣಲ್ಲಿ अपनी अंदरूनी आंखों में सार्थक्यದ सवी हुट्टी, ಹೊರಗಣ್ಣಲ್ಲಿ हरितु नदियागी, और अंदर से उन्हें धन्यता हो गई कि अरे मैं श्री राम को देख लिया, अब मैं इस दुनिया से रुखसत होगी तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे श्री राम को देखना था, श्री राम के दर्शन पाना था। वो जो है राम के दर्शन हो गए, वो खुशी के आंसू भी जो है उसके आँखों में आ गए। तो इस तरह से उन्हें धन्यता भी हो गई और एक तरफ उसके आँखों में आंसू भी आ गए। तो यहाँ पे शबरी जो है राम से मुलाकात करने की जो ख्वाब उन्हें रखो रहती शबरी, तो वो पूरा होता है। तो उसके साथ वो इंसिडेंट को यहाँ नज़म के तौर पर पोएट हमना बता को हिंसो, तो अलग अलग नेचर को कंपेयर कर को पोएट यहाँ पे हमना इस नज़म में बता कर ही, जो कि शबरी पोयम में शबरी किस तरह से कहाँ रहती है, ओके, विंध्या के जंगलों में रहती है और उन्हें राम की याद में जपले को, राम के जो है आने का इंतज़ार कर ले को, वहाँ के जानवरों से, परिंदों से, पेड़ पौधों से पूछ ले को, ऐसा आरिंग की कर को उन्हें याद करते रहते। जैसा ही एक दिन उन्होंने राम आती उसे देती, तो राम को उन्हें अपने हाथों से जो है फलों को तोड़कर जो है उसको मीठा है खट्टा चक्कर को उसमें खिलाते, ट्रीट करते हैं, ओके, वहाँ की फूलों को देती है, फलों को खिलाती है। तो राम भी जो है बड़े खुशी से अपनी माँ के हाथ से खा रहा हूँ, इस तरह से उन्हें भी खुशी से उसको एक्सेप्ट कर को खाता है और कहता है कि मैंने पहले कभी खाया ही नहीं, इतने अच्छे रसीले और मीठे फल कर को बोलती। तो इस तरह से शबरी की जो आस थी, जो राम के जो दर्शन पाना था, फाइनली इट कम्स ट्रू ऑन शबरी's लाइफ। तो पूर्वा कहते इस क्लास में हमें मैं शबरी पोयम है, तो ये रामायण की आने वाली एक स्टोरी की एक सीन है। तो पूर्वा कहते बोलियो, ओके, प्री स्टोरी, तो ये नज़म होने से पहले कि क्या स्टोरी हो को थी कर को। उसके बाद इंट्रोडक्शन में बोलियो, इंट्रोडक्शन में राम किस तरह से अलग अलग अपने कामों को करने को आ रहे थे, उसमें से एक काम रहता है शबरी को भी मुलाकात करना, है ना। तो शबरी का भी मुलाकात का वाला सीन आता है। तो वो सीन को बड़े मज़ेदार किस्म से, मज़ेदार अंदाज से जो है डॉक्टर मोगसाले जो हैं पोएट, जो कि बड़े खूबसूरत अंदाज से शबरी पोयम में उन्होंने अपने अंदाज से बयां किए हैं। तो ये वो शबरी, तो आने वाले क्लास में हमें शबरी पोयम का कवि परिचय, पोएट इंट्रोडक्शन जानेंगे, ओके। पोएट इंट्रोडक्शन के बाद पदगला अर्थ आता है, फिर ಒಂದು वाक्य आता है, फिर 3-4 वाक्य आता है। ये तमाम चीज़ें हमें आने वाले क्लास में यानी पार्ट 2 शबरी पोयम के पार्ट 2 में हमें ये तमाम पॉइंट्स डिटेल से डिस्कस करेंगे।